हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हैरी, एमडी ऑफ हैरीज इंग्लिश क्लब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूके का इंटरव्यू किस तरह से क्लियर किया जाए। गाइज, आज के टाइम में एवरी स्टूडेंट, ऑलमोस्ट एवरीवन इज गेटिंग इंटरव्यू ऑफ यूके एम्बेसी। Before this, we were getting interviews from UK University. Still, we are getting interview from UK University. But UK Embassy interview has become a difficult task for us. So, how to clear UK Embassy interview? In this video, we'll talk about that in detail. First of all, I would like to tell you guys, it depends on level of English. What level of English you are having? What understanding power you are having. If you are having very good level of English, if you are having very good understanding power, then easily you can crack this interview. Side by side, you must know something about UK, something about your university, something about your course, something about your previous course, whatever you have done, something about your job profile after completing your after completing your study from UK, something about staying, something about funds, something about fees, something about who's getting or taking your expenses out through your study. So you must know these all things, because these all things will be asked through interviewer in your interview. So let's start and let's talk about what kind of questions interviewer can ask from you guys. Very first of all, interview comes through Skype, so they easily can see your face. So you should not have anyone beside you who can really help you out. You should not feel nervous at all. You have to be very confident about your interview. Second thing, you should have a very good understanding power. You should understand what actually interviewer is asking from you. If they are asking these questions, you cannot answer that questions. It happens many times. पूछा कुछ गया है, बोला कुछ गया है. So in this case, you get confused, they get confused, or you get refusal. For example, first of all, they do ask you few questions regarding your life, regarding your study, regarding your past study, regarding your future study, as I have already told. तो किस तरह से हम लोग आंसर दे सकते हैं? Because ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, और I'm single person, I'm not going to every university, so I'll not speak about a particular university. I'll not speak about a particular residential area, but I will speak about what actually things you can speak, and I will tell you what can be, what words or what lines can be used while giving interview. So किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में? सबसे पहले क्वेश्चंस क्या रहता है? Yes, can I have your passport number please? Can I have your ID? Whatever is that. That's very easy. You easily can answer. What are the difficult questions comes? We will discuss on that only. Guys, one very important question which interviewers are asking, that is about your previous study, about your last study. Whatever you have done in your last study, you should know each and everything about the study. Whatever subjects you are having in your last study, you should know each and every subject in detail. You should know what you have studied. और गाइज, ये बनता भी है, जो भी आपने पढ़ाई की है, एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट एवरी सब्जेक्ट वट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट. अगर आपको नहीं पता है, दे फील इफ यू डू नॉट नो अबाउट योर पास्ट स्टडी, सो हाउ कैन यू स्टडी फॉर योर फ्यूचर? सो वट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू चेक कि आपका पास्ट लास्ट स्टडी क्या रहा है, और यू हैव टू चेक हाउ मेनी मॉड्यूल्स यू आर हैविंग इन दैट स्टडी, और यू हैव टू नो अबाउट दोज मॉड्यूल्स इन डिटेल. अगर आपको डिटेल में उनके बारे में नहीं मालूम है, सो यू माइट मीट सम ट्रेनर, सम टीचर who usually teach tuitions, or they teach the particular subject. They can let you know few things about the particular subject, as you can speak something front of interviewer, because एक टीचर होगा तो कुछ अच्छी चीज़ें उस सब्जेक्ट से निकाल के आपको डिटेल में ना बताने के बजाय एक ओरली बता देगा, और आपको उसको याद करने में और छोटा करके सुनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. सेकंड थिंग,
after about your study they'll ask you, you need to know each and everything. After that दूसरा important question होता है, they will be asking about your university. Why did you choose university? Why did you choose this university? Because there are number of universities, number of options. You might get options in Australia, Canada, New Zealand. They may ask you why did you choose UK, or they can ask you why did you choose this university. So अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सबसे पहले हम कंट्री से शुरू करते हैं. वाई डिड यू चूज यूके इंस्टेड ऑफ स्टडी इन योर होम कंट्री और अदर कंट्री? सो यू मस्ट नो कि आपने यूके क्यों चूज किया किसी और कंट्री में पढ़ने की बजाय, या फिर अपने होम कंट्री में पढ़ने की बजाय. गाइज वी एवरीवन नो कि यूके वर्ल्ड वाइड फेमस है. यूके यूएसए की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, मतलब स्टूडेंट गेट क्वालिटी एजुकेशन इन यूके. सो ईजिली यू कैन आंसर दिस कि यूके इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन स्टडी, और आपके आंसर्स आपके पास भी होंगे किस तरह से आपको यूके की तारीफ करनी है. सेकंड, आप अपनी फीस स्ट्रक्चर कंपेयर कर सकते हो. आई थिंक यूके हैज़ वेरी रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर देन अदर कंट्रीज. थर्ड, आप कह सकते हैं कि यूके हैज़ शॉर्ट कोर्स देन अदर कंट्रीज, बिकॉज कई कोर्सेज ऐसे हैं जो यूके में कम ड्यूरेशन के हैं और किसी और कंट्री में ज़्यादा ड्यूरेशन के हैं. और यूके इज़ गिविंग वर्क परमिट आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी. दैट इज़ रियली गुड. यू कैन स्पीक अबाउट दिस ऑल्सो. यूके हैज़ मोर फैमिलियर टू द इंडियंस, बिकॉज इंडिया और यूके यूजुअली एक दूसरे से बहुत अटैच है. हमारा लॉ एक जैसा है, सो वी फील मोर कम्फर्ट स्टडिंग इन यूके. अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो इंडिया में प्रैक्टिकल स्टडी ज़्यादा नहीं होती, थ्योरेटिकल ज़्यादा होती है. सो यू कैन से यू आर विलिंग टू स्टडी प्रैक्टिकल इंस्टेड ऑफ स्टडिंग थ्योरेटिकल. बट आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होता है, इंटरनेशनल एक्सप्लोजर मिलता है आपको, आप वर्ल्ड वाइड बच्चों से मिलते हो, सबसे बातचीत करते हैं. व्हेन यू कम बैक टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी इन यूके, आपका जो सैलरी पैकेज होता है वो ज़्यादा होता है, एंड यू रियली गेट वेरी गुड प्रेफरेंस जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं. तो इसलिए आपने यूके चूज़ किया, क्योंकि दूसरी कंट्री से यूके रीजनेबल है. इंडिया से अच्छा है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल इतना पढ़ाई नहीं होता जितना यूके में आपको प्रैक्टिकल पढ़ने को मिलता है, और आपको यूके में पढ़ने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं. इसके अलग से क्वेश्चन होता है गाइज, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी? पहले यूके क्यों चूज किया, फिर यूके के अंदर ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की. Look, you can say I have applied two to three university and I got offer letter of this university, but I got offer letter of other universities also. आप ये भी बोल सकते हैं. Why did I choose this university from these all universities? So अब आपको इस यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी तारीफ करनी होगी. You have to speak about this university. इसके लिए guys you have to search about university. ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. Where is university located? यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, यूनिवर्सिटी को क्या रैंक मिली हुई है, यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और एज मच एज यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट यूनिवर्सिटीज़, उतना ही आप यूनिवर्सिटीज़ की नॉलेज लीजिए. जितना आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकते हैं थ्रू वेबसाइट, थ्रू इंटरनेट, उतना अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए गाइज. इसके बाद पहले हो गया आपने ये कंट्री क्यों चूज़ की, फिर हो गया आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, अब हो गया आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया. व्हाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स? ऑफ कोर्स वो रेलिवेंट होगा आपकी लास्ट स्टडी से, सो इट इज़ रेलिवेंट. और यू व्हाई आर यू विलिंग टू स्टडी इन दिस कोर्स, उसके आपको कोर्स की अब तारीफ करनी है. उस कोर्स में पढ़ने के बाद मुझे ये जॉब मिल सकती है, इंडिया में मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आपको कंपनीज़ के नाम भी पता होने चाहिए, इंडिया में आपको किस किस कंपनीज में जॉब मिल सकती है, क्या सैलरी पैकेज हो सकता है, यूके में क्या पढ़ने के बाद आपको किस तरह से ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है ये कोर्स करने के बाद, इस कोर्स का फ्यूचर क्या है इंडिया में, और अगर आप यूके में पढ़ने के बाद इस कोर्स के लिए जॉब अप्लाई करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं तो वो कोर्स आपको किस तरह से बेनिफिट दे सकता है. इसमें आपको अपने कोर्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग मालूम होनी चाहिए. क्या क्या उस कोर्स में आप पढ़ेंगे, किस तरह के सब्जेक्ट होंगे, आपको इंडिविजुअली एवरीथिंग यू शुड नो. ऐसा ना हो आपको सिर्फ कोर्स का नाम पता है, क्या पढ़ेंगे, किस तरह के मॉड्यूल्स होंगे. स्पेशली जब आप कोर्स की बात करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर सर्च करते हैं, इसमें आप अपने लेक्चरर का नाम भी सर्च आउट कर सकते हैं, आप
इसके जो प्रिंसिपल है और आपके जो अपना चेयरमैन है यूनिवर्सिटी के, जो भी आपको कंसर्न पर्सन के नाम आपके वेबसाइट पे या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नज़र आते हैं, वो भी आपको याद कर लेने चाहिए। इसके अलग से दे माइट आस्क यू अबाउट वेदर, किस तरह का वेदर है यूके में, यूके आप रहेंगे कहाँ पे, कैसे आप अपना रेजिडेंशियल जो एरिया है उसमें कैसे आप अपना मकान ढूंढेंगे, क्या आप उसको ऑनलाइन बुक करेंगे या फिर आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहेंगे। गाइज यूजुअली पीपल से कि हम होटल बुक करेंगे, बट कैसे बुक करेंगे फिर वो पूछ सकते हैं आपसे। सो यू मस्ट नो कि इंडिया से जब आप यूके जाते हैं कहाँ आपको रहने का मिल सकता है नियर बाय योर यूनिवर्सिटी, क्या क्या प्लेसेस के नाम हैं। ये अलग अलग सब बच्चों की यूनिवर्सिटी होती है तो प्लेसेस भी अलग अलग होंगे, वो किस तरह से सर्च आउट कर सकते हैं आप लोग। आपके पास इंटरनेट है, किस तरह से आप उनको सर्च आउट करेंगे और किस तरह से आपको वो बुकिंग मिलेगी, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलग से क्या आपका खर्चा आएगा पर वीक और पर मंथ, आप लिविंग जो कॉस्ट है आपकी वो क्या रहेगी। इसके अलग से जब आप अपने कोर्स में एडमिशन लेते हैं सो यू मस्ट नो कितनी फ़ीस आप पे कर चुके हैं, कितनी आपको वीज़ा आने के बाद पे करनी है, कितनी टोटल कोर्स की फ़ीस है आपकी, कितनी 1 साल की फ़ीस है आपकी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलग से आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपके पापा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पापा के पास कितना पेमेंट है, कितना पेमेंट उन्होंने आपके अकाउंट में डलाया है, वो पेमेंट कहाँ से आई है। और स्पेशली आपकी अगले साल की पेमेंट मतलब नेक्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो आपके पापा कैसे पे करेंगे, यू मस्ट नो, बिकॉज जो हम फंड्स दिखाते हैं वो ऑलमोस्ट 1 साल की फ़ीस कवर करती है। तो अगली फ़ीस कैसे कवर करेंगे आप लोग, ये आपको पता होना चाहिए। आपके पापा की इनकम के ऊपर और कितने लोग डिपेंड हैं, दे मे आस्क दिस क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कितने लोग डिपेंड हैं आपकी पापा की इनकम के ऊपर। अगर आपके ब्रदर या सिस्टर डिपेंड है तो आपको बताना पड़ेगा, अगर आप अकेले ही डिपेंड है तो आपको क्लियर ये भी बताना पड़ेगा। तो गाइज इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आ रहे हैं किस तरह, सबसे पहले आपने यूके क्यों चूज़ किया, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन किया हमने, फिर आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, हमने इंडिया की यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन कर सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया कनाडा की कर सकते हैं या यूके में भी दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग। फिर यूके में आपने सिटी क्यों चूज़ की, फिर आपने सिटी का भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल रही थी। उसके बाद आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, फिर आपने अपने कोर्स की बारे में डिटेल में बताना है कि इस कोर्स के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, इंडिया में कहाँ जॉब लगेगी और क्या फ़ायदा होगा, क्या सैलरी पैकेज होगा, आपसे ये पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सरशिप करने के बाद आपके जो पेरेंट्स है या जो भी आपका स्पॉन्सर है वो अदर खर्चे किसके किसके उठा रहा है और वो कैसे आपके अगले खर्चे उठाएगा। तो यू मस्ट नो दीज ऑल थिंग्स। इसके बाद जिसमें बच्चे ज़्यादातर फंस रहे हैं, आपकी लास्ट स्टडी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपने लास्ट स्टडी की है उसके बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए। गाइज वहाँ बिल्कुल भी लूज़ मत छोड़िए इस चीज़ को। यू मस्ट नो योर लास्ट मॉड्यूल्स एंड अबाउट ईच एंड एवरी मॉड्यूल यू शुड नो इन डिटेल। अगर आपको नहीं पता है अपन में टीचर से मिलिए और इसके बारे में डिटेल में जानिए। सो इट वॉज अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट यूके इंटरव्यू, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस इंटरव्यू you may visit to our office. We are helping so many students to improve their interview, and students are coming to our office also. We can help students by phone also. So if you want to know more about this session, you give me a call on this number. I'll be happy to help you out. Guys, my name is Harry, MD of Harry's English Club. Bye bye, take care.